Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 17th of May 2021. Day is Monday and you are having your science lesson with me. Today we will start a new chapter number 3, the plant world. Before that we were learning the concept of chapter number 2, the animal world, and you have learned a lot of new things in the animal world. So can you tell me the name of the topics that you have studied in that chapter? Well done, Fatima. We have talked about the types of animals on the basis of the spinal cord, and we have given the name vertebrate and invertebrate. Vertebrate are all those animals that are having the backbone, and invertebrate are those animals that do not have the backbone. Then further we have studied that vertebrates are divided into 5 classes and invertebrate are divided into 6 classes. So who is going to tell me the 5 classes of vertebrate? Yes, Khansa, you can give the answer. 5 classes of vertebrate are mammals, reptiles, amphibians, birds and fish. And 6 classes of invertebrate are Aliza, very good. You have given the right answer. They are arthropods, molluscs, sponges, cnidarian and echinoderms. These are the members of invertebrates, and the previous that Khansa has given the answer, they were the member of the vertebrates. So this was the revision. Now let's start in a new chapter, that is unit number 3, the plant world. जैसे हमने एनिमल के वर्ड में सब एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की थी और हमने एनिमल सेल से यूनिट को स्टार्ट किया था, हम प्लांट वर्ल्ड में भी प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देन प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं. Before I tell you about the major concept of plant cell, let us just talk about the benefits of plants in our life. What do you think? How plants are important for us? इनका कोई benefit भी है हमारी लाइफ में या नहीं? I know you all are shouting big yes, they are very important for ourselves. Why? If we say like we are depending on plant, it will not be wrong. अगर हम ये कहें कि हम plants पे depend कर रहे हैं, तो it will not be wrong, because plant give us the life, because they give us oxygen and we are not able to survive without oxygen. So very important thing we are getting for the plant, that is oxygen. Then we are getting fruits from the plant, we are getting vegetable from the plant. Indirectly or directly we can say that we are getting the major food from the plants. हमें plant से food मिलती है. Also we are getting the furniture, paper, clothes, building material. Most of the thing that we are having in our life we are getting from the plant. Also plants are great air purifier. Air को purify करते हैं, हमें clean और healthy environment provide करते हैं. Some of the benefits of the plant I have written it on the board. What you are supposed to do, आपने सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करते हुए अपना एक एक्टिविटी टास्क करना है. That is you have to write the importance of plants in our life. हमारी लाइफ में प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है. How you are going to do it? आपने एक अच्छी सी ड्राइंग करनी है अपने किसी A4 शीट पेज पे भी आप कर सकते हो, और यू कैन डू इट ऑन योर साइंस नोटबुक ऑन ब्लैंक पेज. आप अपने साइंस नोटबुक के ब्लैंक पेज पे भी कर सकते हो, या फिर आप A4 शीट पे पेंट कलर्स के साथ whatever the color you are having you can use that, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. What you have to do is आपने ड्राइंग में ये एक्सप्लेन करना है that plants are very important for us, we should not cut them, this should be the moral of your drawing. उसके बाद आपने जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट्स पे प्लांट्स के बेनिफिट्स लिखने, जस्ट द वे आई हैव रिटन. आप इसको, अगर मैं आपको साथ आइडियाज़ शेयर करूँ, यू कैन डू इट लाइक दैट कि आप एक प्लांट ड्रॉ करो, उसके लीव्स बनाओ और हर लीव पे उसका एक एक बेनिफिट लिख दो. आई हैव ड्रॉन अ रफ डायग्राम ऑन द बोर्ड. आप इस तरह का एक ट्री बना के उसमें इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको पेस्ट भी कर सकते हो, एक पेपर पे लिखकर पेस्ट कर सकते हो, और यू कैन राइट ऑन द पेपर, और उन जो आपने छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स बनाई होंगी उसके साथ आप एक प्लांट की शेप बना सकते हो. एंड यू हैव टू शो लाइक दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट एंड दिस इज़ द रीज़न वी शुड नॉट कट देम. सो ये आप सबसे पहले एक एक्टिविटी टास्क करेंगे, देन आप प्लांट सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताने लगी हूँ. ठीक है.
ओके, क्लास 5 जैसे हमने जब प्लांट्स एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले जब हमने एनिमल वर्ल्ड वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा था. आई होप दैट यू रिमेंबर ऑल द लेबलिंग. हमने उसमें न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में रीड किया था. एंड वी हैव ऑल्सो लर्न द बेनिफिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन साइड दैम. अब हम प्लांट सेल में प्लांट वर्ल्ड में प्लांट सेल के बारे में डिटेल में पहले बात करते हैं. I am drawing the diagram of plant cell in front of you. It is somehow like this. It is elongated. जब हमने एनिमल सेल की बात की थी, दैट वाज इन राउंड शेप. प्लांट सेल जो है वो elongated होता है. इसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, दिस वन, द आउटर वन, इसको हम सेल वॉल कहते हैं. ओके, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल, और जो इसके अंदर ये वाली है सेकंड, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने सेल वॉल की बात नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, क्योंकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. नाउ लेट्स लेबल इट. This is what we are saying, cell wall, and this internal one is called cell membrane. जो सबसे आउटर है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और जो उसके बाद इनर साइड पे है वो सेल मेम्ब्रेन है. एंड दे बोथ आर हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग द प्लांट सेल. प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. देन वी आर हैविंग अ वैक्यूल. This hole is called the vacuole, V-A-C-U-O-L. Okay, vacuole. It's containing the water and the liquid material inside it, जिससे plants को plant के जो organelle अंदर काम कर रहे हैं उनको food मिल रही होती है. Also it's having these green color spores inside it, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट इज हेल्पिंग इन क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर फूड. प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, प्लांट विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड. ओके, देन वी आर हैविंग दिस शेप, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन काम कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस काम कर रहा होता है. पूरे जो पार्ट्स हैं उनको हेल्प आउट करता है, बताता है कि व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ द एक्टिविटी विल बी टेकन प्लेस. ओके, देन द लास्ट वन इज दिस होल थिंग इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. So this is the structure of a plant cell, in which we have studied that it's having cell wall that is present on the outermost side. Then it's having the second layer, we are calling it cell membrane. Both cell wall and cell membrane provide the protection from the outer thing. जो सेल प्लांट्स के बाहर जो चीज़ें होती हैं उससे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. वैक्यूल इज समथिंग दैट इज हैविंग द लिक्विड मटेरियल. फूड होता है इसमें, और जिससे बाकी जो ऑर्गेनलीज हैं उनको फूड प्रोवाइड कर रहा होता है. साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि अगर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड करके बाकी सारी चीज़ों को इंक्लूड करें, मतलब ये जो इंटरनल होल मटेरियल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है, वैक्यूल भी आ जाता है और न्यूक्लियस भी आ जाता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है.
Chloroplast is the green pigment that is containing chlorophyll, that is very very important for the process of photosynthesis. These are the parts of the plant that they have also drawn it on your notebook, not on the notebook but on the book, page number 37. आपने अभी जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई, फर्स्ट यू हैव टू डू दैट, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम and you also have to do the coloring just the way they have colored it on your reading book. You have to label it and give the importance of each part. जो भी हमने बात की है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, आप इनके बारे में डिस्कस करोगे. ओके, लेट मी चेक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, देन यू कैन डू दैट क्वेश्चन एज वेल. No, there is no question related to that. What you have to do, you just have to write the topic. आपने just topic write करना है और उसके बाद आपने ये बताना है कि this is a plant cell and it's having these other parts, जैसे अभी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है. This is all about this topic, plant cell. Okay, now see, just the way we have classified the animals in unit number 2, जैसे हमने यूनिट नंबर 2 में एनिमल्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस और देयर करेक्टरिस्टिक्स, उनकी करेक्टरिस्टिक और अपीयरेंस की बेस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे थे, वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में. सेम वी हैव टू डू विद द प्लांट्स. प्लांट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मोर देन मिलियन ट्रिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. हम उनको भी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स. सो मेजर क्लासिफिकेशन क्या है? So let me write it on the board and then I will explain to you. Like first of all, plant, जैसे हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स थे, इसी तरह सबसे पहले हमारे पास प्लांट किंगडम होता है जिसमें सब जितने भी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं, उसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं. प्लांट किंगडम में सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो स्पोर बेयरिंग और सीड बेयरिंग प्लांट्स पे होती है. कुछ प्लांट्स के पास सीड्स होते हैं, जैसे उनके फ्लावर्स के अंदर होते हैं या फ्रूट्स के अंदर से निकलते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के पास सीड्स नहीं होते, उनकी बॉडी पे स्पोर्स होते हैं. ठीक है, तो वी आर डिवाइडिंग द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर एंड सीड, के जिसमें सीड्स हैं वो सीड बेयरिंग प्लांट होंगे और जिनमें स्पोर्स हैं उनको स्पोर बेयरिंग प्लांट कहेंगे. ठीक है, अब जिनमें सीड्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. लाइक पहले हम इस कैटेगरी की बात करते हैं. सबसे पहले हमने कहा प्लांट किंगडम इज हैविंग स्पोर बेयरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट. सीड बेयरिंग प्लांट में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, उनके ऊपर कॉन्स होती हैं. ठीक है, तो जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं उनको हम बायोलॉजी में या साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एंजियोस्पर्म और जिनके ऊपर कॉन्स होती हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म. आई रिपीट, आई सेड कि सीड बेयरिंग प्लांट में फर्दर टू टाइप्स हैं. द वन दैट आर हैविंग द फ्लावर्स, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं और जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स ग्रो नहीं करते उन पे कोन्स ग्रो करती हैं और जिसकी वजह से हम उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं. ठीक है, अब हम स्पोर बेयरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. दे कंटेन 3 टाइप्स, जिसमें नंबर 1 है एल्गी, नंबर 2 मॉसेस एंड नंबर 3 इज फर्न्स. दे आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट्स की टाइप्स हैं फर्न, मॉसेस एंड एल्गी. आई विल लिंक अ वीडियो. अभी इस वीडियो के बाद मैं एक छोटी इंटरनेट से आपके यूट्यूब से एक वीडियो लिंक करूँगी जिसमें आप ये देखोगे कि एल्गी, मॉसेस और फर्न्स में डिफरेंस क्या है. यू विल सी द पिक्चर्स एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ठीक है, देन वी हैव द लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है. फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स आर 2 टाइप, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. जिनमें एक सीड होता है उस प्लांट के अंदर उसको हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं और जिनमें 2 सीड्स होते हैं उसको हम डाइकॉटिलिडन कहते हैं. We will definitely talk about them in detail but not now because इससे related एक specific आगे particular topic है, अब उस पर बात करेंगे. For now what you have to keep in your mind that this is the chart of classification of plants. हम plants को कैसे classify करते हैं. Classification of plants, plant kingdom जिसमें हर type के plants आते हैं. It's having 2 types, spore bearing जिसमें सिर्फ spores होते हैं and the other that is seed bearing जिसमें seeds होते हैं. स्पोर बेयरिंग में वी आर हैविंग 3 फर्दर कैटेगरीज जिसमें एल्गी, मॉसेस और फर्न्स हैं
और सीड बेयरिंग में वी आर हैविंग फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज इन विच जिसमें प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और कॉनिफर्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, कोन्स ग्रो करती हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म एंड कॉनिफर्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की आगे फर्दर टाइप है जिसको हम मोनोकोट और डाइकोट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यू हैव टू डू द एक्टिविटी, देन यू हैव टू ड्रॉ द प्लांट सेल, और उसके बाद आपने ये वाला जो साइकिल है ये आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे गिवन है। दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन टू यू। आपने भी वीडियो को देखने के बाद इसको गो थ्रू करना है और इसको अपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑल्सो वी आर हैविंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, लेट मी शो इट टू यू। That question is given on page number 37. This is all about today, your science lesson. Let us just give a quick wrap up to our today's science class and see what we have studied. We have talked about the plant cell and see like it's having different part. The outermost layer in the plant cell is called cell wall, and the second membrane that is present in plant cell is called, then it's having a large central vacuole that contains the food, liquid and other waste material. Also it's having the chloroplast that contains the, I think I have not written the word chloroplast. Chloroplasts contain chlorophyll that is very helpful for the production of the food by photosynthesis. अगर chloroplast नहीं होगा, chlorophyll नहीं होगा, और अगर chlorophyll नहीं होगा, plant will not be able to prepare their food. Then we have talked about the nucleus that is acting as the brain of the cell, और साइटोप्लाज्म से लेकर सेल के इंटरनल मटेरियल को कलेक्टिवली हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, and on the left side I have drawn the plant kingdom that contains spore bearing plant, seed bearing plant. Seed bearing plant are further divided into flowering plant, that is what we are calling the angiosperm, और conifers को हम कहते हैं gymnosperm because they do not contain the flowers. उसके बाद spore bearing plant में हमने categorize किया है algae, mosses और ferns को, और angiosperm में we have divided monocots and dicots, and we have divided the angiosperm in monocot and dicot. Monocots are having the single seeds and dicots are what they are having the two seeds inside them. So this is all about today. You have to do the assigned task that I have shared with you in the video, and then you have to do the question answer related to the topic related to the topic, and then send it to me. Also, while getting the watching the video, if you find difficulty, you can ask me on the WhatsApp group, or you can also send the message on the YouTube link. So take good care of yourself, do your work on time, and also send the work on the Google Classroom. Also send your notebooks to school so that your relevant teachers can check. From class 5, I have just received the 20 notebooks of science. What about the remaining students who are not doing the work? So you all are supposed to do the work, and you have to send to school when your teachers are asking, because अगर आपका काम चेक नहीं होगा तो you will not get to know कि how many mistakes are you are doing. So this is all about today. I think we have covered all the topic: plant kingdom, plant cell, and the benefits of the plant.